ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 2017 ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਪੀੜਤਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਸਾਗਰ, ਮਿਸਟਰ ਪੀਕੇ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹਜੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀ FIR ਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ कि जो बुरा करता ਉਹਨੂੰ बुरा फल भोगना ही पैंदा। बजिंदर है उसे लाया जा सकता है, कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा, वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है, इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए, और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी है, क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक SIT का गठन किया गया है, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ, बजिंदर है उसे लाया जा सकता है, कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा, वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है, इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए, और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी है, क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक SIT का गठन किया गया है, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ था, जीरकपुर की एक महिला जो केस दर्ज करवाती है, जिसे विदेश भेजने के नाम पर आखिर कैसे जो है उसके साथ यौन शोषण किया गया, कैसे उसके साथ रेप की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया, पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा, और आखिरकार कोर्ट ने उसे दोषी माना और कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर दिया गया है। और सिर्फ एक मामला यहां पर नहीं है, इसके अलावा जो है एक मामला जो आपने जो है
जीरकपुर का देखा, आपने इस मामला जो है चंडीगढ़ का देखा, और इसके अलावा जादू से बीमारियां ठीक करने का दावा, क्योंकि इसके यूट्यूब पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर जो चैनल इसका चलता है उस पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं, जिसमें जादू टोना टोटके के जरिए ये बीमारियां ठीक करने का जो है वो दावा करता है, और उनका माइंड वॉश जो है वो लोगों का करता है, धर्म परिवर्तन करता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो प्रॉफिट विजेंदर जी हैं उनके ऊपर 2018 में जो रेप का केस लगा था, पिछले कुछ दिनों में उनको इस बात के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि 1 अप्रैल को कोर्ट का पूरा फैसला आना था और आज है 1 अप्रैल। और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पर गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।